I've started the recording, everybody. I've started the recording. Oh, I've started the recording. समझ आ रही है? Okay, that's awesome. So let's start. So up until this point, we've started off with moles and we've completed what moles are. Moles actually is just a unit of representation and it represents a number which is 6.02 into 10 raised to the power 23. Then a mole also represents the volume of a gas at room temperature and pressure, which is 24 dm cube or 24,000 centimeter cube, right? And then we all also studied and this is obviously only for gases. And then we also studied that obviously the mole also represents something known as molar mass, and molar mass it connects mass with moles through this molar mass, right? So if you want to find the mass of any substance, if you want to find the mass of any substance and you're given the moles, you take the moles times it by molar mass. If you want to find the number, you take the moles times it by Avogadro's constant. If you want to find the volume, you take the moles and times it by this number. And then also we also study the concept of concentration, which through which we derived a formula which is N equals Cv. What is concentration, by the way? It tells you how much solute is dissolved in a certain amount of solution. It tells us how much solute is dissolved in a certain amount of solution. That is what concentration is, and therefore we did a lot of questions yesterday and we derived the formula N equals Cv. The first formula is obviously mass equals mole times molar mass. The second one obviously becomes, if you want to find the number, you take the moles times it by 6.02 into 10 is power 23. And if you want to find the volume of any gas at room temperature and pressure, you can multiply the moles with 24 dm cube, or if you want it in centimeter cube, you can multiply it with 24,000 cm cube, because 1 decimeter cube equals 1,000 centimeter cube. Yeah. सर आप पढ़ाएं और समझ ना आए ये कोई सवाल है? चलो, थैंक यू मैन, थैंक यू. नहीं समझ सवाल तो फिर उठना चाहिए. Okay, these were the relationships, and for molecules and atoms we studied a relationship. For example, I'm given 4 moles of carbon dioxide. If I want to find the molecules of carbon dioxide, I take the moles times it by 6.02 into 10 to the power 23. But if I want to find the total number of atoms of carbon dioxide, I first find the moles of atoms. So 4 times 1, you have 4 moles of C. 4 times 2, you have 8 moles of O. 4 plus A, that's 12. So you have 12 moles of atoms. And now you can find the number of atoms, which is equal to 12 times 6.02 into 10 is power 23. Any questions up until this point? Yeah, no questions? No, that's awesome. जब सवाल नहीं होते ना, हमारे प्रोफेसर कहते थे जब सवाल नहीं है तो या तो सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा. So this is what we studied up until this point, these 5 relationships, right? So relationship number uno, relationship number dos, relationship number tres, relationship number cuatro, and that's cinco. 5 relationships right here in front of you, and other than these 5 there are no other relationships in moles, right? These 5 relationships only for O levels, IGCSE, and even A levels. Done. Today we're going to start off with stoichiometry. Normally teachers do not differentiate between moles and stoichiometry, but because I am me, I will be differentiating between the two. What is stoichiometry? Well, stoichiometry literally is derived from two words, two Greek words. Stoichio is derived from a Greek word called stoichion, which literally means elements. And metry, whenever you come across the word metry, it literally means that you're talking about measurement. So, stoichiometry, when the concept of stoichiometry came into being, it was basically revolving around the measurement of elements, right? And then scientists thought to themselves, कि यार, how are we able to measure elements? And then they proceeded with some reactions and with some experiments and some observations, and they realized that the literal meaning of stoichiometry is the measurement of elements, but if you talk conceptually, or if you talk from the perspective of a scientist, stoichiometry is literally a relationship between reactants and products. Effectively, stoichiometry is literally just a relationship between reactants and products. What do I mean by this? Think about this.
the gas that comes in your chulas, that's basically methane gas, right? Largely methane is the constituent. Methane CH4 होता है, जो कुकिंग गैस होते हैं, आप सारे अपने घर पे बिरयानियाँ बना रहे होते हैं, तो जो बिरयानियाँ आप लोग बता रहे हैं, that's methane gas that's coming inside your house to help you guys cook stuff. और अगर आपके घर में गैस की कमी है तो पाकिस्तान हुकूमत को 2-3 गालियाँ दें, but that's the gas, right? And you realize that when this gas reacts with oxygen, it gives you carbon dioxide and water, and it gives you flame, it gives you large amounts of energy which you use to make food, right? So these are certain reactions that take place in the universe. For example, when hydrogen reacts with oxygen, it makes water. These are certain reactions. When magnesium, a metal, reacts with some acid, it gives you something called a salt, and it gives you hydrogen gas. So do we need to know this as of now? No. You will study all of these reactions later on in life, but what I'm trying to tell you is everything in this universe, be it reactants or products, the particles which are reacting, these particles, they're called reactants. Why are they called reactants? Because they're literally reacting with each other, right? तो इनको reactants कहते हैं, and what is produced are products. ऐसी है ना, आप इनपुट देते हैं, आपको आउटपुट मिलता है, तो these are your reactants and these are our products, right? So what you need to understand is everything in this universe consists of a chemical reaction taking place, and when a reaction takes place, you have reactants forming products. Reactants react with each other to form products, and stoichiometry is the relationship between reactants and products. So reactants and products, these are my reactants, these are my products, they are connected with each other through these beautiful equations. इनको हम केमिस्ट्री में कहते हैं equations. तो equations क्या बनाए? Equations connect reactants and products with each other. And stoichiometry tells you the relationship between reactants and products. तो reactants और products के बीच में जो relationship है वो stoichiometry बताता है. That is literally what stoichiometry is. But reactants और products को आप connect कैसे करते हैं? Through equations. And not just any equations, we call them balanced equations. Balanced equations क्या मतलब है? Said for example, you have methane, which is CH4, it reacts with oxygen, gives you carbon dioxide and water. This equation needs to be balanced. What do I mean by this equation needs to be balanced? Well, the atoms on the left hand side must be equal to the atoms on the राइट हैंड साइड. और ये क्यों है? ये आप चैप्टर 1-2 जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ये सारी मजे मजे की बातें बताऊंगा, बिकॉज इट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. अगर नहीं पढ़ा तो बता दो. जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो इस तरह एटम्स भी या क्रिएट भी नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते. सो इफ यू हैव 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट, यू शुड हैव 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द राइट, बट देयर आर ओनली 2. तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए? x इज इक्वल टू 4/2, दैट गिव्स यू 2 here. And if you check this out, carbon is 1, you have 1 atom of carbon on the right as well. You have 4 atoms of H, now you also have 4 atoms of H. You have 2 atoms of O here, and 2 times 1, 2 atoms of O here. So in total you have 4 atoms of O, but you only have 2 atoms of O on the left. तो left को 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए? क्योंकि राइट पे तो 4 है, लेफ्ट पे आपके पास 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए? 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा. x equals to. सर दिस इज कॉल्ड ए बैलेंस इक्वेशन. तो अल्लाह ताला जब आपको खाने बनाने के लिए गैस देते हैं, व्हाट ही डज इज, दिस इज लिटरली व्हाट ही डज, he takes methane, he reacts it with 2O2 and gives you carbon dioxide and gives you 2H2. अब ये 2 क्या बला है? This 2 actually represents the number of moles. This 2 actually represents the number of moles. और अगर कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब है 1 है. तो this one is the number of mole, this one is the number of mole, which actually means that whenever you have 1 CH4, 1 mole of CH4, it will react with 2 moles of O2 to give you 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of H2O. This is what universe does. Do you need to know this equation as of now? No. I will teach you all these equations later on. Do you need to know how to balance these equations? Balancing क्या है? कि atoms left और right equal होने चाहिए. For now, do you need to know how to balance these equations? No. I will teach you that later on in acid, bases and salts. For now, you just need to know that these are your reactants, that these are your products, and they are connected with each other through a balanced
equation. Why am I calling this a balanced equation? Balance मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि atoms on the left are equal to atoms on the right. कैसे? One carbon on the left, one on the right. Four hydrogens on the left, four on the right. Four oxygens on the left. One times two is two. Two times one is two. Two plus two, four. Four on the right. Done. So for stoichiometry, to tell you the relationship between reactants and products, you must have a balanced equation. तो अब फॉर एग्जाम्पल आप घर में जो है कुकिंग कर रहे हैं, सारे घर में बैठ के कुकिंग कर रहे हैं, यू नो दैट वन मोल ऑफ CH4, जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है वन, दैट वन मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 moles of O2 टू गिव यू 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 moles ऑफ H2. अब आप कुकिंग कर रहे हैं, मजे से बैठे हुए हैं, कुकिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं, और आप मेथिन गैस दड़ा दड़ इस्तेमाल करी जा रहे हैं. आपकी अम्मी आपको कहते हैं वेट वेट वेट, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आप कहते हैं मामा क्या हो गया? आपकी अम्मी आपको कहती हैं बेटा आपने अभी सिलेंडर हम भरवा के लाए थे, आप इस सिलेंडर में खैर गैस थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन आपकी मामा आपको कहती सिलेंडर में हम मीथेन भर के लाए थे और उसमें सिर्फ था 70 ग्राम्स मीथेन था. बेटा आप तो दुनिया तबाह कर रहे हो. आप कहते हैं अम्मी क्यों? आपकी अम्मी आपको कहती बेटा आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, you've been cooking since morning, you've used 70 grams of methane gas and you're producing a lot of carbon dioxide, and we know that carbon dioxide currently is a major factor for global warming. इसकी वजह से दुनिया गर्म होती जा रही, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज है. तो आप अम्मी को कहती हैं एक सेकंड मामा, एक सेकंड, स्टोइकियोमेट्री मुझे एक रिलेशनशिप बताता है और मैं उसको इस्तेमाल करके आई विल टेल यू कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड मैं बना रहा हूँ. तो आपकी अम्मी कहती कैसे? आप कहते हैं मामा वेट, अल्लाह ताला ने कहा है कि व्हेन यू हैव 1 mole ऑफ CH4 इट विल ऑलवेज गिव यू 2 moles ऑफ, सॉरी, इट विल ऑलवेज गिव यू 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप कहते हैं अम्मी को कि अम्मी देखें 1 mole ऑफ CH4 always gives me 1 mole of carbon dioxide. How do I know this? Through this balanced equation. यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, यूनिवर्स बैलेंस्ड इक्वेशंस होते हैं यूनिवर्स में. तो दिस यू नो थ्रू दिस ब्यूटीफुल इक्वेशन. और आप अम्मी को कहती हैं एक सेकेंड अम्मी, 70 ग्राम्स ऑफ CH4 कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? मैं आपको अभी बताता हूँ. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू सिट डाउन एंड यू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CH4, बिकॉज आप इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन का रिलेशनशिप मोल्स की बेस पे है. 1 mole गिव्स यू 1 mole. सो 70 ग्राम्स को सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करें. सर कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स. ग्राम्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैस इक्वल्स मोल टाइम्स मोलर मास. मास गिवन है ना, 70 ग्राम इज द मास. मोल्स कैलकुलेट करने. मोलर मास ऑफ CH4, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन इज 1, 4 हाइड्रोजन है, टाइम्स इट बाय 4, एड देम टुगेदर, व्हाट डू यू गेट? 16, 16 gram per mole. N is equal to 70 over 16, what do you get? 4.375. these are what? These are the moles of CH4. तो इतने मोल्स है CH4 के आपके पास. फिर आप अम्मी को कहती हैं अल्लाह ताला ने जो बैलेंस्ड इक्वेशंस बनाई यूनिवर्स में, उससे मुझे अम्मी पता है कि 1 mole ऑफ CH4 गिव्स मी 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 4.375 मोल्स ऑफ CH4 कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे? लेट्स सपोज n, आई डोंट नो, इतनी ही देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4.375 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे. अब अम्मी को कहती है अम्मी मैं आपको बताता हूँ कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने प्रोड्यूस किए. तो अम्मी कहती कैसे? आप कहते हैं मैं इसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता हूँ. हाउ कैन यू कन्वर्ट मोल्स इनटू वॉल्यूम? V इज इक्वल टू, इट्स अ गैस, हाउ कैन यू कन्वर्ट मोल्स इनटू वॉल्यूम? V इज इक्वल टू n टाइम्स 24, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें. So volume equals 4.375 into 24. What do we get? What do you get, everybody? 105. Are you sure? 105? 105 dm cube. तो आप अम्मी को कहती हैं अम्मी आप तो सच कह रही थी, मैंने तो 105 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस कर ली. दिस इज लिटरली स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री क्या कर रही थी? इट गेव यू ए रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट्स आपके पास थे, आपको उन्होंने कहा कि 70 ग्राम CH4 आपने इस्तेमाल किया. सो इन स्टोइकियोमेट्री व्हाट यू अंडरस्टैंड इज यू व्हेनेवर यू आर गिवन सम डेटा, यू फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू मोल्स, you convert that data into moles, and then you use the balanced equation to calculate the unknown, which in this case for us was carbon dioxide, and then you convert it into whatever the question requires. That's literally stoichiometry. तो आगे आप लोगों से मैं सवाल पूछूं, मैं पूछूं आप लोगों से सवाल, दूं आप लोगों को एक सवाल दूं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई से दैट हाइड्रोजन reacts with half a mole of oxygen to give you H2O.
ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशंस फिलहाल मैं दूंगा। सर उन अनम्यूट करें, म्यूट क्यों कर दिया है? म्यूट इसलिए किया है कि एक दफ़ा मैं पढ़ा दूँ फिर अनम्यूट कर दूंगा। चलो अनम्यूट कर दिया, ये लो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ रामी। ओके। सो अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, 6 डेसीमीटर क्यूब, बल्कि 6 डेसीमीटर क्यूब नहीं, 6.02 नहीं, 7.11 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा? चलो शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, हाउ डू यू नो इट्स अ स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन? हाउ डू यू नो यू हैव टू यूज स्टोइकियोमेट्री? बिकॉज आपको दिया कुछ और है और मांगा कुछ और है। दिया हाइड्रोजन है, मांगा H2। तो आप कहते हैं एक सेकंड रुको एग्जामिनर, you've given me hydrogen and you want H2O. Give me something that connects hydrogen and H2O, and that something is the balanced equation which I've already given you. तो आप एग्जामिनर को कहते हो एक सेकेंड मुझे तो बताओ तो सही कि हाइड्रोजन और H2O कैसे कनेक्टेड है, तो वो आपको कह देता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन ले लो। चलें जी, करने की कोशिश करें, शाबाश शाबाश। 3 steps for stoichiometry: convert the data into moles, use the equation to find the unknown, which in this case is H2O, the moles of H2O, and then you convert it into, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ grams बताओ, then you convert it into whatever the question requires, which in this case is grams। ऊपर वाली केस में मैंने वॉल्यूम मांगा था। स्टोइकियोमेट्री ख़त्म हो गई, मुबारक हो आपको। कल इंशाल्लाह हम लिमिटिंग एंड एक्सेस करेंगे। बस अब इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स करूँ? शुड आई सॉल्व इट कि कर रहे हैं खुद कर रहे हैं? शुड आई सॉल्व इट और डू यू वांट गाइस ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट? जल्दी बोलें, जल्दी, 2 seconds, 2 seconds। नहीं सर हमने करना है, अच्छा जी बताएं, शाबाश। आमना is saying 212.6 grams। Let's see आमना, I don't know, let's see। देखते हैं आप सही हैं कि गलत। शाबाश शाबाश, आई लव दिस क्लास। सर आपने नोट्स कहाँ सेंड किए हैं? बेटा कैडी नोट्स, ये नोट्स हैं, यही नोट्स हैं आपके जो मैं लिख रहा हूँ। कल वाली लेक्चर की वो मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ जी शाबाश। वैसे मेरा मानना हमेशा ये होता है कि नोट्स अगर आप खुद बनाए ना तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये नहीं कि क्लास में एक तरह नोट्स बनाए, फिर उसको नीट एंड टाइडी बनाना है, फिर उसमें ग्लिटर्स लगाने हैं। ये ग्रेड 2 वाली बातें छोड़ दें। एक पेन के साथ क्लास के दौरान ही नोट्स बनाते जाएं, और अगर कोई चीज़ स्किप हो जाए तो क्लास को एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड, नथिंग एल्स। किसी टीचर की किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। आगे जाऊं, करूं मैं? चलो मैं कर देता हूँ। आई एम गिवन मॉलिक्यूल्स। स्टोइकियोमेट्री करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आई नो दैट हाइड्रोजन एंड H2O आर कनेक्टेड। हाउ? एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स मी 1 मोल ऑफ H2O। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इधर तो मॉलिक्यूल्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू मोल्स। हाउ कैन यू कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स इनटू मोल्स? वेल वी यू नो दैट मॉलिक्यूल्स इक्वल मोल टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 7.11 into 10⁻24 divided by 6.02 into 10⁻23। दिस विल गिव मी द मोल्स। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो उधर डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, कितने मोल्स आते हैं? 11.81 moles of H2। डन सर। नाउ आई नीड टू फाइंड H2O। तो आई नो दैट 1 mole of H2 gives me 1 mole of H2O। So if I have 11.81 moles of H2, I would obviously have 11.81 moles of H2O। मतलब हर दफ़ा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं ना। अगर ये एक या आपको एक प्रोड्यूस करके दे रहे तो 11.8 आपको 11.8 प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन जिनकी मैथ कमज़ोर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई n इंटू वन, n इंटू वन इज़ n, 11.81 इंटू वन इज़ 11.81। अब ये मोल्स ऑफ H2O आ गए। प्लीज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं करने जा रहा हूँ कि इसके साथ लिखें, जो आप फाइंड करते हैं उसके साथ लिखा करें तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हाइड्रोजन निकाला, ये H2 आया। अब मांगा क्या है? एग्जामिनर ने मांगा क्या है? ग्राम्स मांगे, ग्राम्स। तो आप निकालें जी ग्राम्स। मैस इक्वल ग्राम्स से कैसे, मोल से ग्राम्स कैसे निकालते हैं? मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस। मोल्स कितने? 11.81। मोलर मैस कितने है H2O का? 18। बिकॉज H2O, right? So oxygen is 16, hydrogen is 1, and times it by 2. Done? What do you get? 18 gram per mole. So जी निकालें जी, क्या आ रहा है?
नहीं बेटा, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन का 1 है, हाँ जी, और हाइड्रोजन का 1 है, एंड टाइम्स इट बाय 2, तो कितना आया जी? 1 1 2 1 2 1 2 212 ग्राम्स। खत्म। और सवाल दूं, और सवाल दूं, और सवाल दूं? अच्छा वैसे मैं आप लोगों को मज़े की बात, चलो एक और सवाल देता हूँ। CH4, आपके घर में गैस आ रही है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और पानी बन रहा है, and obviously yes, two here and two here. I'll balance it for you for now. Obviously I tell you guys, hey, 72 decimeter cube CH4 बल्कि carbon dioxide है. You have 72 decimeter cube of carbon dioxide. Find how much volume of CH4 was required to make 72 dm cube of H2O. कितना CH4 चाहिए था 72 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4 के लिए? क्या करना है? यूर गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे वांट यू टू कैलकुलेट CH4, तो आपने कहना है सबसे पहले क्या कहना है? सर कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, CH4 मांगा है, हाउ आर दे बीइंग कनेक्टेड? मैंने आपको दे दिया सर, दे आर बीइंग कनेक्टेड टू दिस बैलेंस्ड इक्वेशन, देयरफॉर इट्स स्टोइकियोमेट्री. व्हाट डू वी नीड टू डू फर्स्ट? What do we need to do first? First calculate the moles, sir. You're given volume, so convert the data into, तीन steps है stoichiometry के. Convert the data into moles. शाबाश, calculate करें sir. And then the second step is use the equation to calculate unknown moles. And third step is जो question की requirement है उसमें convert करें. बस convert into the requirement. This is literally your entire chemistry of stoichiometry. Yeah. चलें जी. How do you convert volume into moles? Yes, yes, yes. बोले बोले बोले. Yes. हाँ जी, हाँ जी. V is equal to, देख लीजिए, V is equal to n times 24. वॉल्यूम कितने हैं? 72. मोल्स निकालने 24 से मल्टीप्लाई. मोल इक्वल 72 डिवाइड बाई 24, यू गेट 3 आई बिलीव. वो तो सबील मुझे भी पता है 72 डिवाइड बाई 24 है, मुझे फाइनल आंसर बताए ना. 3 मोल्स ऑफ, 3 मोल्स ऑफ क्या? ये क्या है? 3 मोल्स ऑफ क्या? 3 क्या? 3 moles of carbon dioxide, obviously. Then you don't need carbon dioxide, you need CH4. So the next step is use the equation to find CH4. You know that 1 mole of CH4 and 1 mole of carbon. For 1 mole of carbon dioxide, you need 1 mole of CH4. तो मैं लिख सकता हूँ 1 mole of CO2 is requires 1 mole of CH4. So if you have 3 moles of CO2, how much CH4 would you require? N cross multiply, you get 3 moles of CH4. And then what does the examiner want? The examiner wants the volume. So V is equal to n times 24 dm cube. What does it give me? What did they give me? 3 times 24. That's 72. So if you had 72 dm cube of CH4, it would actually give you 72 dm cube of carbon dioxide. Done? Easy peasy lemon squeezy. Any questions? आसान. अच्छा अब इसमें एक शॉर्टकट देखें. CH4 is a gas, everybody. Oxygen is obviously also a gas. And you have carbon dioxide and you have H2O. There's 2 here and there's 2 here. And they're also, in this case, सोचेंगे ये भी gas. चलो इसको liquid कह दें. Okay. There's a shortcut. अब shortcut भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको shortcuts भी सिखाऊंगा. Whenever you're dealing with gases, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं. कोएफिशिएंट्स मैंने क्या कहा था? कोएफिशिएंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, राइट? कोएफिशिएंट्स क्या बनाए? दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स. बट रिमेंबर, whenever you are dealing with gases, these coefficients also represent the number of moles, but they also represent the volume. तो अगर मैं कह रहा हूं कि 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of H2O, I can safely also say that 1 centimeter cube of CH4 reacts with 2 centimeter cube of O2. I can also say 1 decimeter cube of CH4 reacts with 2 decimeter cube of O2 to give you 1 cm cube of CO2 in this case.
एंड पानी लिक्विड है तो उसका मैं कुछ नहीं कह रहा। और चलो इसको मैं गैस कह देता हूँ, इसको भी मैं गैस कह देता हूँ, तो फिर इसके लिए भी हम लिख लेते हैं, तो मैं गैस कह देता हूँ। To give 1 cm cube of CO2, and because this is also a gas, so now it's 2 cm cube of H2O. And in this case, 1 dm cube of CH4 reacts with 2 dm cube of O2 to give you 1 dm cube CO2 and 2 dm cube H2O. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अब्दुल्ला नासिर साहब, I'm just saying that these moles that I said in the beginning, that the coefficient, इनको हम coefficients कहते हैं ना मैथ्स में, the coefficients represent the number of moles, right? But they also represent the volume of gases. Whenever you're dealing with gases, इन coefficients को आप assume कर सकते हो कि ये volume है। और इसका proof देखें, proof मैं थोड़ी देर में देता हूँ, but let's just talk about this question. I said 72 decimeter cube of carbon dioxide से कितना CH4 बनता है? Equation जरा लिखें दोबारा, कितने CH4 से बनता है, right? मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं कहूँ कि 1 decimeter cube CH4 gives me 1 decimeter cube carbon dioxide, तो अगर मेरे पास 72 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कितना CH4 होता? X क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ रहा है ऑफ CH4, और यही हमने कैलकुलेट किया ऊपर। Sir, basically the volume will be the same as moles, absolutely. So if you're dealing with gases. अच्छा, अलीन का बहुत मजे का सवाल कि सर वॉल्यूम ऑफ O2 तो 48 आना चाहिए। देखिए, चलो थोड़े पास पेपर के सवाल करते हैं अलीन, फिर मैं आपका जवाब दे देता हूँ एंड में, क्योंकि आई नो दैट नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस। बस लोगों को पता लग गया कि ठीक है, 1 मोल जो है, जो ये कोएफिशिएंट्स है, अगर ये गैस होगा तो ये मोल की जगह मैं इसको 1 cm क्यूब भी कह सकता हूँ और 1 dm क्यूब भी कह सकता हूँ, दैट्स इट। लेकिन आपका जो सवाल है इट्स मच मोर कॉन्सेप्चुअल, सो आई हैव टू गो इनटू मच मोर डिटेल फॉर इट। सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास, हाँ, नूर इज ऑल्सो आस्किंग दिस क्वेश्चन नाउ, हाउ वुड वी नो दैट सेंटीमीटर क्यूब या डीएम क्यूब दोनों एक ही बात है? इसको आप सीएम क्यूब भी कह सकते हैं, डीएम क्यूब भी कह सकते हैं इन दिस केस, राइट? And why is this the case? I will tell you at the end of the class. Those of you who are interested, I will tell you at the end of the class. Remind me. Those of you who are not interested, just know कि जब गैस होता है तो मोल की जगह आप इसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं। सर अगर इस इक्वेशन में एक भी सॉलिड हो तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा? नहीं, फिर भी होगा, इट विल स्टिल अप्लाई। देखो अप्लाई होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CH4 गैस है, तो गैस गैस के बीच में आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं H2O को लिक्विड कह दूं तो फिर मैं, और मैं आई वांट टू फाइंड द मास ऑफ H2O, तो फिर मैं तो वॉल्यूम जाहिर सी बात है इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, H2O तो लिक्विड है। फिर मैं इन दोनों को अगर मैं तब भी कंपेयर करूं तो आई कैन स्टिल यूज दिस रिलेशनशिप। इन दोनों को कंपेयर करूं, आई कैन स्टिल यूज दिस रिलेशनशिप, राइट, एज लॉन्ग एज यू आर कंपेयरिंग द गैसेस विद ईच अदर। तो गैसेस के जो मोल्स हैं वो उनकी वॉल्यूम भी है। और ये क्यों ऐसे है मैं एंड में बता दूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वाई बिहाइंड इट? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली मुझे फर्क नहीं पड़ता, बता दूंगा। आपके सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको पता होना चाहिए। चलो 6 लोग जानना चाहते हैं, एंड में बचिएगा मेरे साथ। अभी हम 5 पेपर सवाल करने जा रहे हैं, तो उसके बाद मैं एंड में बता दूंगा ये क्यों ऐसे। तो दिस वॉज योर एंटायर स्टोइकियोमेट्री। 3 स्टेप्स है स्टोइकियोमेट्री के। मोल्स निकालो, मोल्स निकाले सर, और ऑफ नोन डेटा एंड देन यूज द इक्वेशन, और फिर मोल्स निकाले अननोन के। आए पास पेपर के सवाल अब देखना शुरू करते हैं। अब आज से हमारे पास पेपर के सवाल शुरू हो जाएंगे। आज के और आज के बाद सारे सवाल जितने हम करेंगे वो हम करेंगे पास पेपर के। ओके, लेट्स गो। ये ए लेवल की किताबों के सवाल है, अगर ये कोई करना चाहता है कर ले, लेकिन आप लोग जाएं पेज नंबर, गो टू पेज नंबर, let me tell you which page to go to, boys and girls. Oh my god. Okay, go to page number 43, sir. Go to page number 43, please. Go to page number 43. जी शेख अयान साहब, बोले बोले। जी जी, you may speak, man. You can unmute yourself. हाँ जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है अभी तक। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा, मैं आपका हाथ फिर लोअर कर देता हूँ।
Everybody on page number 43, can I get a Gucci in the chat box? करना शुरू कर दे. Can I get a Gucci in the chat box, please? Should I start solving? Yes, Gucci, 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 Gucci. Okay, so it says silicon is a non-metal, blah 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 blah. Nobody cares. Nobody cares. It says what is the maximum mass of silicon, which is right here, that can be made from 300 grams of silicon dioxide. This is silicon dioxide. So I'm given silicon dioxide. I have to find silicon, right? अलीन ये बुकलेट बदल गई है आपका, थोड़े से आगे पेजेस पे होगी, इनके पेजेस थोड़े मैंने कम किए हुए हैं इस दफ़ा. ओके, सो आई हैव टू फाइंड सिलिकन एंड आई एम गिवन सिलिकन डाइऑक्साइड का मास. पहले क्या करूं, मास इक्वल्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर इन दोनों को कनेक्ट करना है. 1 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड गिव्स यू 1 मोल ऑफ सिलिकॉन, और फिर बाद में हमने मास फाइंड करना है. डन. सो सबसे पहले कन्वर्ट द नोन डेटा इनटू मोल्स. मास इक्वल्स मोल टाइम्स मोलर मास. 300 ग्राम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, मोल्स कैलकुलेट करें. मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. व्हाट इज सिलिकॉन इन द पीरियोडिक टेबल? सिलिकॉन क्या है पीरियोडिक टेबल में? 28. So 28 plus oxygen is 16, times it by 2. What do we get, sir? What do you get? What do you get? 20, 32? No, 60. So n times 60. N is equal to 300 divided by 60. 5. 5 moles of क्या फाइंड किए? ये क्या है? ये moles of SiO2. Yes, silicon dioxide, right? Then you need to find silicon. So 1 mole of silicon, use the equation. 1 mole of silicon dioxide gives you 1 mole of silicon. तो सर 5 moles of silicon dioxide कितने moles of silicon देंगे? n क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ही देंगे. और मांगा क्या हुआ है? What is required? What is required? What is required? The mass of silicon. तो mass equal mole time molar mass. mass निकालना है, मोल 5 है. सिलिकॉन का मोलर mass 28. 5 times 28, what do you get? 5 8s are 0, 4, 5 to 140 grams is the final answer. Khadam? So Sabil Shahid, it's not 143.3, it's 140. I hope you've printed out the correct periodic table जो आपके सिलेबस में. इसको स्किप कीजिएगा, AR शेयर बाद में पढ़ेंगे. ओके, ब्ला 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 ब्ला. अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वैसे किसी ने देखा है क्या होता है? हैज एनीबडी सीन सोडियम? इट्स बेकिंग सोडा यार, बेकिंग सोडा जो आजकल आप दांतों पे भी डालते हैं लोग, कुछ लोग हैं. तो ये सोडियम है. इट कह रहे थर्मल ब्ला 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 ब्ला. मांगा क्या है? इट सेज what is the maximum mass of sodium carbonate? This is sodium carbonate. What is the maximum mass of sodium carbonate that can be made from 0.1 moles of sodium hydrogen carbonate? ये sodium hydrogen carbonate है. Done. So what is the first step? Convert the data into moles. ये तो पहले से moles given है, तो पहला step तो उन्होंने हमारा कर लिया. Second step, use the equation to connect these two. किन दो को connect करना है? सोडियम कार्बोनेट मांगा है और दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. यू नो दैट 2 moles of sodium hydrogen carbonate, 2 moles of sodium hydrogen carbonate gives you 1 mole of sodium carbonate. ऐसे ही है. तो 0.1 mole of sodium hydrogen carbonate would give you how many moles? क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0.05 moles है ना. अच्छा, वैसे हर दफ़ा ये क्रॉस मैं आपको ना चाहता हूँ थोड़ा दिमाग भी तेज़ हो जाए इस तरह. देखो, एक नज़र देखें. ये 2 है, 1. 2 के बदले में 1 बनता है, मतलब आधा दे रहे हैं ना. 2 है, 2 का आधा 1, तो 0.1, तो इसका आधा देगा आपको 0.05. तो कभी कभार दिमाग तेज करने के लिए ऐसे आप कर सकते हैं, वरना तो जिसकी मैथ्स कमज़ोर है, अगेन 2 mole give you 1 mole, so 0.1 mole would give you n cross multiply n times 2 equals 0.1 times 1. n times 2 हो रहा है, 2 साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो 0.05 आ जाएगा. डन. Okay, these are the moles of sodium carbonate. And I'm not making fun, please. Sorry, I'm not making fun of anybody. I'm just saying if your math is weak, then you do it like this. Okay, ये moles आ गए सोडियम कार्बोनेट के. मांगा क्या हुआ है? मांगा क्या हुआ है? Mass. Mass equals what? Mole times molar mass. 0.05 times sodium carbonate का molar mass निकाले सर. Sodium is 23 in the periodic table, times it by 2 because you have 2 sodiums. कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, टाइम्स इट बाय 3 बिकॉज 3 ओज हैं. तो व्हाट डू यू गेट गाइस? 106. 106 एज द बर्गर से कहते हैं 106 और 106 क्या होता है? इट्स 106, 106.
हाँ जी, क्या आया? 5.3 ग्राम. Or in other words, 5.3 peeps. 5.3. Do we have 5.3? So if your concepts are clear, it's impossible that you get these questions wrong. Please, अच्छा, I beg you guys, I request you guys, क्योंकि एक बात मैंने ना 10 दफ़ा कहनी पड़ती है. So I request, yes, 5.3 grams of sodium carbonate. I request you guys to not do the MS papers for this. Please, ये मेरी वर्कशीट कर लें, ये more than enough है. MS आपको confuse करेगा. हाँ, एक दफ़ा मैं पूरा मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट कर दूं और मैं कहूँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर जिस मर्जी जगह से सवाल करें, मुझे कोई इशू नहीं है. लेकिन फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूँ. इसके बाद मैंने आप लोगों को आई हैव टू टीच यू लिमिटिंग एंड एक्सेस. उसके बाद आई हैव टू टीच यू हाइड्रेटेड सॉल्ट. उसके बाद आई हैव टू टीच यू परसेंटेज बाय कॉम्पोजिशन बाय मास. उसके बाद आई हैव टू टीच यू परसेंटेज यील्ड. उसके बाद आई हैव टू टीच यू एम्पिरिकल मोलेकुलर फॉर्मूला. उसके बाद आई हैव टू टीच यू टाइट्रेशन. फिर आपका मोल्स खत्म हो जाएगा. तो अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए मोल्स में. 70% 80% खत्म हो गया आपका मोल्स. तो एक दफा मैं पूरा खत्म करूं, फिर आपने सवाल करने. ठीक है. अच्छा, विच कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन. अब देखें, ऑक्सीजन निकालना है. अब ये स्टोइकियोमेट्री का सवाल नहीं है, वैसे ये इंटर कन्वर्जन में होना चाहिए था. देखिए, 3 × 3 दैट्स 9 एंड 9 टाइम्स 0.2. 3 × 3 दैट्स 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.2. तो दीज आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. कितने मोल्स ऑफ ओ आ रहे हैं? 8.8. 8.8. 1.8. Okay, 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 okay. Chill. Equals 1.8 moles of O. Done. अच्छा, मुझे बात बताएं. इसको करें 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 4. 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 1.2. अच्छा जी. 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3. सॉरी, इसका भी आ रहा है 1.2. सर, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 पॉइंट. अच्छा, मुझे एक बात बताएं. इट सेज मैस बना है, तो आई कैन फाइंड द मैस बाय सेइंग हे मैस इक्वल मोल टाइम मोल. लेकिन एक एमसीक्यू है. डू आई हैव टू डू दिस? जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका मैस भी ज्यादा होगा? नहीं यार, क्योंकि इफेक्टिवली मैंने क्या करना है, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 16, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 16, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 16, 1.5 मल्टीप्लाई. तो एंड में इसी से बड़ा, जिसके ये नंबर बड़ा होगा उसका जाहिर सी बात है मास भी बड़ा होगा. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. डन. तो ये करने की, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ हाउ टू बी स्मार्ट. ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके मोल ज़्यादा होंगे जाहिर सी बात है उसका मैथ भी तो बड़ा होगा सबसे. लेकिन आप अगर करना चाहें कर सकते हैं. मल्टीप्लाइड बाय 16. Which sample contains the most atoms? Water is H2O. I'll write it for you. Carbon dioxide is CO2. क्योंकि अभी अब तक मैंने आपको फॉर्मूलेज नहीं सिखाए, वो मैं चैप्टर 3 में सिखाऊंगा कि फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं. एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl. बताएं जी, विच ऑफ दीज वुड हैव द मोस्ट एटम्स. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या, ये तो मॉलिक्यूल्स है सारे, तो मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं. इस दिन के लिए पढ़ाया था, इस दिन के लिए पढ़ाया था. हाँ जी. व्हाट टू डू? इट वांट्स एटम्स बट यूर गिवन. नहीं, वैसे बिल्कुल आप नहीं बता सकते. आपने सबसे पहले कैलकुलेट करने. कैसे? सर, H2O है, तो व्हाट आर द मोल्स ऑफ एटम्स. ये तो मॉलिक्यूल्स है, तो मोल्स ऑफ एटम्स निकाले सबके. 0.5 मल्टीप्लाई 2 और 1, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, व्हाट यू गेट? 1.5. आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.5 टाइम्स 2 एंड 0.5 टाइम्स 1, और यार डायरेक्ट कर लें 0.5 टाइम्स 3. 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट गिव्स मी 3. 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट गिव्स मी 5. दीज आर द टोटल मोल्स ऑफ एटम्स. ये क्या है? मोल्स ऑफ एटम्स है ना. और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट्स 4. तो बिल्कुल रामीन सही कह रही थी, नज़र से भी पता लग रहा है. सर, वाई नॉट? CH4 क्लियरली हैज़ मोर एटम्स. ठीक है, और अगर इधर मैं लिखता 5, फिर अगर इधर मैं 5 लिखता, फिर तो CH4 आंसर होता आपका? नहीं. फिर क्या होता? 5 टाइम्स T3. फिर एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, तो 2 है ना. अच्छा, मुझे एक बात बताएं. अलीन और रामीन मेरे साथ आप लड़ रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ. मुझे बताएं, अगर ये मैं 5 कह देता तो फिर 5 टाइम्स 3 होता, फिर 15, फिर सबसे ज़्यादा मोल्स ऑफ एटम्स इसमें होते ना. तो लड़ लें और मेरे साथ लड़ लें. हाँ, जाहिर है ऐसे ही करना है जैसे सब कह रहे हो. बिल्कुल सही बात है. इसी सवाल में वैसे जिनकी मैथ्स तेज है तो वो डायरेक्ट भी कर सकते थे. अच्छा, एटम्स निकालने की ज़रूरत है यार. जाहिर सी बात है, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके एटम्स भी. एटम्स क्या कैसे निकालेंगे अब?
मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10^23। तो जिसके मोल ज़्यादा है जाहिर सी बात है उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, वरना आप देख सकते कर सकते। करता जाऊँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव यू 24 cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। निकालें जी, कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स। V is equal to n times 24 because carbon dioxide is a gas. 24 equals n into 24. अच्छा 24 लिखोगे 24,000। Yes, so this is centimeter cube. तो इधर 24 नहीं होना चाहिए, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। या फिर सही है। और या इस 24 को आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें अगर 24 इस्तेमाल करें। व्हाट डू वी गेट? n is equal to 24 divided by 24,000. So it's 0.01, right? So these are the moles of carbon dioxide. निकालना क्या है, मांगा क्या है? Moles of calcium carbonate. 1 mole of, तो use the equation. Second step, use the equation. 1 mole of carbon dioxide gives you 1 mole of calcium carbonate. So 1 into 10 is power minus 3 moles of carbon dioxide would give you how many moles of calcium carbonate? And cross multiply, इतने ही moles of calcium carbonate मिलेंगे। और next step, convert it into, अच्छा बस यही है। तो 1 into 10 is power minus 3 का मतलब है 1 divided by 1000। 0 1 की जगह 0, 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया और 1 की जगह पॉइंट। तो या तो आपको पता होना चाहिए कि 1 into 10 is power minus 3 is 0.001, या तो आप ऐसे करें, हम बचपन में ऐसे करते थे कि 1 के नीचे 1000 है तो इस 0 के लिए ये 1 है, इस 0 की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह 0 और 1 की जगह पॉइंट, तो 0.001। और अगर ये भी नहीं आता तो प्लीज़ अपने मैथ की टीचर के पास जाएं, देयर इज़ अ ट्रिक ऑन कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो पता नहीं इंग्लिश दबा दें या कुछ दबा दें तो वो आपको डायरेक्टली पॉइंट्स में बता देगा। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज डियरिनो। आगे जाऊं, करता जाऊं। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। Which mass of carbon dioxide is produced for 14 ग्राम of carbon monoxide? You are given carbon monoxide और मांग क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इक्वेशन भी गिवन है। ओके, कन्वर्ट, फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट, mass equal mole times mole, and convert into moles, right? Mass given है 14 moles, calculated molar mass of carbon monoxide. Carbon is 12, monoxide 16, yeah? 12 plus 16 28, 28, 0.5. These are the moles of कार्बन मोनोऑक्साइड। सर फाइंड करने को क्या कहा? यल्ला 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 एवरीबॉडी, फाइंड करने को क्या कहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना। यू हैव टू स्टिच देम। सो 2 moles of carbon monoxide gives me 2 moles of carbon dioxide। अब देखिए ना, जाहिर सी बात है, अगर दो आपको दो दे रहे हैं तो 0.5 आपको 0.5 ही देगा। मतलब कभी कभार ना दिमाग अब आहिस्ता आहिस्ता तेज होने की बारी है। अब हमने पढ़ लिया कि 2 से 2 मिलेगा तो 0.5 से n मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स 0.5 टाइम्स 2, n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0.5। बजाय ये you can now do it directly. Use your brain. Say, hey, 2 gives me 2, 0.5 should give me 0.5. Done. So these are the moles of CO2. तो अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको तेज कराऊंगा इसमें। एंड देन व्हाट डज इट वांट? मैस और वॉल्यूम? मैस मांग है तो मैस इक्वल मोल टाइम मोलर मैस। अच्छा, इफेक्टिवली अगर आप देखें, इफेक्टिवली अगर आप, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। कैसे? कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, टाइम्स इट बाय 2, add them together, what do you get? 44. So 0.5 times 20, 44, 22, a खत्म। अच्छा, इफेक्टिवली अगर आप इस पे सोचें, ये क्या चीज़ थी? ये हमने मोल्स में पढ़ा था, जिसको ये जो हमने स्टोइकियोमेट्री से पहले जितना भी पढ़ा है इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको हम? ये आप लोगों की नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, इंटर कन्वर्जन। यू आर कन्वर्टिंग इनसाइड द थिंग, मतलब 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप कन्वर्ट कर रहे हो एटम्स में, टोटल एटम्स में, या आप 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को टोटल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, या इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। मतलब वी आर कन्वर्टिंग इट इनसाइड इटसेल्फ। कार्बन डाइऑक्साइड को ही उसकी शक्ल बदल रहे हैं। कभी समटाइम आई एम जस्ट चेंजिंग द फेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। समटाइम्स आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ mass, sometimes I'm talking in terms of atoms, sometimes I'm talking in terms of molecules, sometimes I'm talking in terms of volume. I'm just changing its face initially, right? लेकिन स्टोइकियोमेट्री में क्या हो रहा है? स्टोइकियोमेट्री में आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जा रहे हैं। तो अगर आप देखें, ये चीज़ हमने मोल्स में पढ़ी, एग्जैक्ट सेम। ये चीज़ हमने मोल्स में पढ़ी, एग्जैक्ट सेम। फर्क सिर्फ क्या आया? स्टिचिंग टू थिंग्स, कनेक्टिंग टू थिंग्स। दैट इज व्हाट स्टोइकियोमेट्री इज।
It helps you connect things together. And how can you connect things? Through a balanced equation. So you will you always be given balanced equation? For now, yes. जब आप इक्वेशंस बनाना सीख लेंगे, नाम सीख लेंगे, बैलेंस करना सीख लेंगे, तो फाइनल पेपर में आपको इक्वेशन बनाने को भी आ सकता है और फिर फर्दर मोल्स कैलकुलेट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, टेल मी समथिंग, 4 grams of sodium, how much hydrogen in volume will form? आपका सवाल मेरे से क्या होना चाहिए? You have 4 grams of sodium, and my question is, how much hydrogen will form from 4 grams of sodium? That's my question. What should your question be? What should your question be? Is it a stoichiometry question? My first question. How do you know it's a stoichiometry question? How do you know it's a stoichiometry? Exactly. So you have to stitch things because sodium is something totally different. Hydrogen is something totally different. So it is a stoichiometry question because I have to connect these two things together. And how do I connect things together? Through a balanced equation. तो आपने मुझे कहना है सर एक सेकंड होल्ड अप, you've given me mass of sodium. Okay, wait. You guys tell me कि sir hold up, you've given me mass of sodium and you want hydrogen. First tell me how have you connecting them. So I will tell you, hey, okay, I'll connect them. Sodium reacts with pani to gives you NaOH and it gives you hydrogen. तो मैं आपको ये कनेक्ट करके दे रहा हूँ, खुश हो जाओ, दे दिया कनेक्ट होके। अब आपने कहना अच्छा सर, अब ना इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, आई विल से 1 mole ऑफ सोडियम गिव्स मी 0.5 moles ऑफ हाइड्रोजन, तो इतने मोल कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देगा x, जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आए फिर v इज इक्वल टू n टाइम्स 24। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू थिंक लॉजिकली कि यार ये स्टोइकियोमेट्री का ही सवाल है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें। हाँ अगर मैं आपको कहता हूँ 4 grams ऑफ सोडियम है एंड फाइंड मी द एटम्स ऑफ सोडियम, तो क्या इसके लिए इक्वेशन की ज़रूरत है? ये तो मैं इसी की शक्ल बदल रहा हूँ। तो वो तो आप सिंपल कर सकते हैं, मैथ्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करें और मोल्स को फिर एटम्स में कन्वर्ट करें, जो हमने कल आखिरी क्लास में किया था। फिनिश्ड, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क सुन ले, मैं सवाल कराता जाऊँ कि होमवर्क? अच्छा ये सवाल नहीं करना अभी, यू डोंट हैव टू डू दिस क्वेश्चन प्लीज, इस क्वेश्चन पे कांटा लगाएं। अच्छा आई वुड नो दैट यू गाइज हैव डन योर होमवर्क और नॉट, डू यू नो व्हाई? बिकॉज इसी स्टोइकियोमेट्री के वर्कशीट में, इसी स्टोइकियोमेट्री की वर्कशीट में कुछ सवाल मैंने अलग चैप्टर से डाले हैं। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू नो हु इज़ डूइंग द वर्क। जो अलग चैप्टर से सवाल है वो मुझे, वो जिस बच्चे को उसमें मुसीबत हो जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये सॉल्व कर रहा है। अगर तो एक बच्चा कहे कि सर सारे सवाल हो गए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे सवाल, ये लिमिटिंग एंड एक्सेस का सवाल है और मैंने इसको इसमें डाला इसीलिए कि मुझे पता लगे कि जो बच्चा मुझे कहे सर सारे कर लिए मैंने, तो वो मुझे पता लग जाएगा कि उसने सारे इसलिए नहीं, क्योंकि ये सवाल उससे होना ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है। Why convert into atoms? We just needed the moles to find the volume. Does that, I mean, you Aline, there's no need to print the new worksheet. पुरानी worksheet ज़्यादा डिटेल में, लेकिन चूंकि वो टॉपिकल बुकलेट बन गई है ना मेरी, तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सवाल आपने करने, लेट मी टेल यू वेयर टिल व्हेन डू यू हैव टू कंप्लीट इट। जिन्होंने पुरानी प्रिंट की है और वो की नहीं है, तो वो अपनी पुरानी ख़त्म कर लें। किधर तक करना है? इधर तक करना है, मैं बताता हूँ किधर तक करना है। रुकिएगा रुकिएगा, you have to do it till page number, wait, पेज नंबर, आह माय गॉड इतना ज़्यादा होमवर्क है। दिस इज़ फॉर द वीकेंड एवरीबॉडी। मैं होमवर्क नहीं देता, सिर्फ मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा काम आपने खुद करना है। पेज नंबर 92 आपकी नई बुकलेट की, ये थोड़ा ही है। लिमिटिंग इन एक्सेस से पहले पहले तक जितने सवाल हैं वो करने, खुदा की कसम घंटे से 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे से कम ही लगने इंशाल्लाह, मैक्सिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 आवर्स। तो आधा आधा डिवाइड करके करने। अच्छा एक सवाल मैं कराऊँ, एक सवाल मैं कराऊँ, चलो जी। ओहो यार why? मुबारक हो बेटे, मुबारक हो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके, ये देखिए कितना भयानक सवाल लग रहा है। लुक एट दिस गाइस, ओ माय गॉड। अच्छा ये वाला फिलहाल नहीं है, तो ये तो मैंने एम ही डाले हुए हैं। ओ माय गॉड गाइस, कितना भयानक सवाल। आई एम जस्ट डूइंग वन मोर क्वेश्चन। कितना भयानक सवाल है ये, क्या है, मांगा क्या है? ओ माय गॉड ये क्या? सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल। क्या लिखा हुआ है? यू आर गिवन एन इक्वेशन, सो इट्स अ स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन। इट सेज
Calculate the volume of carbon dioxide formed at room temperature and pressure. Obviously we know कि हमारी O level और A level में है ही room temperature and pressure, which is, और वो कहता है when 12.6 grams of sodium hydrogen carbonate is heated. अच्छा, और वो आपको कह रहे हैं use the following steps. मैं आपको कह रहा हूँ कोई steps नहीं इस्तेमाल करें, मुझे बताओ कोई steps नहीं है. 12.6 grams of sodium hydrogen carbonate है आपके पास और कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बताएं जी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मैस को कन्वर्ट करें इनटू मोल्स. तो मैस इज गिवन 12.6, मोल्स कैलकुलेट करें. मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैलकुलेट करें. सोडियम इज 23, hydrogen is 1, carbon is 12, oxygen is 16. You have 3 oxygens, times it by 3. Add. What do you get? 94. Okay, chill. गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? 12.6 divided by 84. What do you get? 0.15. ये किसके मोल्स हैं? इसलिए मैं कहता हूँ लिखा करो. जो फाइंड कर रहे हो तो लिखो कि मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वर्किंग. अब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मांगे तो नाउ फर्स्ट कनेक्ट दीज टू. 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स यू 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो 2 moles of sodium hydrogen carbonate gives me 1 mole of carbon dioxide. So 0.15 should give you how much? And cross multiply. 0.15 divided by 2. 0.075 moles. ये किस चीज़ की मोल्स है? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की, यही तो फाइंड किया. अब मांगा क्या था? वॉल्यूम. V इज इक्वल टू एन टाइम्स किस चीज़ में मांगा है? सेंटीमीटर क्यूब में कि डेसीमीटर क्यूब में? डीएम क्यूब में मांगा है. तो एन टाइम्स 24,000. 24. V इज इक्वल टू 0.075 इंटू 24. क्या आया? 0.8 डीएम क्यूब. अच्छा 1.8, सॉरी 1.8 डीएम क्यूब. डन. ये क्या आ गया? वॉल्यूम है. अब देखो वो आपको क्या कराएगा. Determine the mass of 1 mole of sodium hydrogen carbonate. What is the mass of 1 mole of sodium hydrogen carbonate? बोले 1 mole. 1 mole 84 sir, because 1 mole of any substance is the molar mass. नहीं, mass of 1 mole of any substance is the molar mass. यही है ना. 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मैस होगा? इन सबको ऐड करो, कैलकुलेट तो किया 84. मोलर मैस है. मोलर मैस क्या होता है? इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ARMR भूल जाए. द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द मोलर मैस, जो पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट होता है. ये 84 आ गया. ठा 82 है कि 84 है? आई डोंट नो. आप लोगों ने कैलकुलेट किया, मैंने नहीं किया. 23 प्लस 1 24, 36 और 16 टाइम्स 3 इज 48. 48 प्लस 36 इज 84. सही है, 84 ये. कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NaHCO3. ये आ गए इधर 0.15. कैलकुलेट डिटरमिन द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये आ गया इधर. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये आ गया इधर. इजी और हार्ड? बोले जी, आप बोले. तो ये स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग एंड एक्सेस से पहले तक सारा खत्म करें. कोई सवाल है, शक शुबह पूछिएगा जी. एनी क्वेश्चन? The MS is available in the description of our group. You open the group and you go to the topicals link and you click on the rest folder, and inside the rest folder you click on moles and stoichiometry, and inside that you have the worksheet and you have all your answers as well. तो मैंने एक और तरीके से सॉल्व किए ताकि बच्चे कॉपी ना कर सकें. बिल्कुल जी, मैंने कोई और मोल्स करने के देयर आर 50 ways टू डू दिस मोल्स. मैं आपको फॉर्मूला भी कभी कभार ना ही पढ़ाते, लेकिन चूंकि टीचर्स पढ़ाते हैं और आप अपने टीचर्स की बातें फिर वो आपको कहते हैं फार्मूला के मार्क है, तो फिर मैंने भी कहा मैं भी पढ़ा देता हूँ. वरना मैं आज से पहले फार्मूलाज भी नहीं पढ़ाता था, मैं आपको मैथ्स के थ्रू कराता था. लेकिन चलो, अब जो है सो है. बट एनी अदर क्वेश्चन सर? नो. I will give you guys the PDF of the 1700 pages of topicals for free. उसकी जो मार्किंग स्कीम होगी, जितना मैं कराऊंगा वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन मार्किंग स्कीम की हम कुछ चार्ज रखेंगे, वो हम एक वेबसाइट पे अपलोड करेंगे. की तो बहुत ज़रूरी. अच्छा अलीन, आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ. और किस बच्चों को कॉन्सेप्ट चाहिए? बाकी जिनको वो 48 ग्राम DMQ वाली बात अगर समझनी है. अच्छा बेसिकली ना कहानी मैं आपको बताता हूँ. एक ज़माना ऐसे था, ये मोल से पहले ना एक ज़माना ऐसे था. इसी CH4 की एग्जांपल को देखें. रिकॉर्डिंग में भी डाल रहा हूँ यार, अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकता है. असल में ना एक ज़माना ऐसे था कि इंसानों को ये एक इक्वेशन नज़र आई और उन्होंने कहा यार
इसको ज़रा देखो ये चल क्या रहा है। तो उन्होंने कहा ये बेसिकली क्या हो रहा है। उन्होंने कहा यार 6.02 इंटू 10 is power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहे हैं 1.204 इंटू 10 is power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ, और वो आपको इतने मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं CO2 के, और इतने मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं आपको H2O के। अब उन्होंने कहा यार ये अब लिखेगा कौन, लिखेगा कौन, ये क्या है? तो उन्होंने कहा इसको वे करो ज़रा। उन्होंने कहा इसको वे करो। जब उन्होंने इसको वे किया तो उसको उनको पता चला कि यार ये बेसिकली क्या है, 16 ग्राम CH4 है, और ये आपके पास जनाबे वाला 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड इट गिव्स यू 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट गिव्स यू 36 ग्राम्स ऑफ O2। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको और छोटा करने की कोशिश। उन्होंने कहा यार वॉल्यूम में बताओ ये कितने रिएक्शन, ये इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा इतने मॉलिक्यूल्स इतने के साथ रिएक्ट करते इतना दिया, अच्छा आप ग्राम्स देखो, तो इतने ग्राम्स इतने के साथ रिएक्ट करके ये देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 64 + 16 विल बी इक्वल टू दीज टू। तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा वॉल्यूम ज़रा देखो। तो उन्होंने कहा 24 DM³ जो है वो रिएक्ट कर रहा है 48 DM³ के साथ to give you 24 DM³ of carbon dioxide, 24 DM³ of CH4 जाहिर सी बात है, और ये O2 of carbon dioxide, और it gives you 48 DM³ of H2। तो उन्होंने ये सारा देखा। उन्होंने कहा यार ये सारा तो एक रेशो है। उन्होंने कहा दिस इज़ ऑल ए रिलेशनशिप। इसको अगर मैं 1 मोल कहूँ, इसको अगर मैं 1 मोल कहूँ, इसको अगर मैं 1 इसका रेशो अगर मैं निकालूँ, ये मोल क्या बुलाती है, असल में एक रेशो है। मैं बताता हूँ ये रेशो कैसे है। इन सब को, ये जो ऊपर मैंने लिखा है, इन सब को ज़रा 6.02 इंटू 10 is power 23 से डिवाइड करें। इन सबको अगर आप एक इंडिविजुअली 6.02 इंटू 10 is power 23 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 1 CH4 reacts with 2O2 to give you 1 CO2 plus 2H2O। फिर उन्होंने कहा अच्छा इसको इनको ज़रा मोलर मैसेस पे डिवाइड करें। तो इनको जब मोलर मैस पे डिवाइड किया एग्जैक्टली यही है। फिर उन्होंने कहा ये वॉल्यूम को ज़रा 24 पे सबको डिवाइड करें, 24 पे सबको डिवाइड करें, 24 पे सबको डिवाइड करें, तो क्या आया 1 2 1 2। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू गिव यू 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O अलीन, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि 24 डेसीमीटर क्यूब या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब of CH4 is reacting with 48 DM³ क्योंकि 2 times 24 is 48, right? 48 DM³ of O2 with 48,000 centimeter cube of O2 to give you 24 DM³ of CO2, और let's suppose ये भी एक गैस है, right? So 48 DM³ of H2O। अब मुझे एक बात बताएं अलीन, इनका ज़रा रेशियो निकालें, क्या आता है अलीन? इनका रेशियो निकालें, क्या आता है? इन सब को अगर आप 24 पे डिवाइड करें इन सब को, तो आपके पास आता है 1 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट्स विद, अगर देखिए ना 24, अगर मैं कहूँ 24 रिएक्ट्स विद 48, तो मैं कह सकता हूँ 1 रिएक्ट्स विद 2। क्या मैं कह सकता हूँ 1 रिएक्ट्स विद 2 टू गिव यू 1 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 DM³ ऑफ H2। मैं सबको 24,000 से अगर डिवाइड करूँ तो मैं कह सकता हूँ 1 CM³ रिएक्ट्स विद 2 CM³ टू गिव यू 1 CM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 दिस। तो ये बेसिकली एक रेशियो है। इसलिए मैंने कहा कि अगर गैसेस आपके पास हों तो उनके मोल्स को ऐसे कंसिडर करें कि वो उनके वॉल्यूम्स भी हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ रेशियो। ख़त्म, आसान, इट्स कूल। ज़्यादातर बच्चे ये नहीं जानना चाहते, तो मैं ऐसी बातें और भी बड़ी बातें कि एग शेल्स की मैं बातें करूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू गिव, बट नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड।